गुड मॉर्निंग बच्चों. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ashish, do you have any problem, beta? Good morning, ma'am. Ashish, do you have any? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What happened? Ma'am, I was saying that can you please show yesterday's notes? Sure. Notes or you want video? Whatever you can do. Whatever. Okay. I'll provide you video after this lecture or like after one more lecture of 12. Then I'll give you. Okay. Okay, thank you, ma'am. Fine, beta. Welcome. Now we'll start with the topic. What we have done is we have done quantum theory. Okay. And I hope that you have learned this equation, which is asked in your various competition exams. You select the correct form of the Schrodinger wave equation. So this is correct form of Schrodinger wave equation. That is del square psi with respect to what? X-axis. मतलब इसको हम बोलते हैं double derivative with respect to x-axis. So in the same way, double derivative of psi with respect to y-axis. In the same way, double derivative of psi with respect to z plus 8 pi square f divided by h square e minus b is always equal to 0. हो सकता है कोई एक दो टर्म इधर का उधर किया हो तो उसको आप रिकॉग्नाइज करें. इट शुड बी इन दिस फॉर्म. ये याद करना इज अ बिग डील. और एक इस पर मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं विच इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन मैथमेटिकल ऑपरेटर. और वो लगाने के बाद व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज एनर्जी. जो मैंने ये अंडरलाइन किए हुए देखें आप. तो इन दो की वैल्यू अगर हमें पता हो मैथमेटिकल ऑपरेटर किसी भी वेव फंक्शन पर तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट एनर्जी. दिस इज द मेन थिंग. ओके. और साई की क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये हमें कुछ भी नहीं बताता है अबाउट व्हाट पोजीशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. बट साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कि वहां पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. तो साई स्क्वायर हैज सिग्निफिकेंस. ओके. दिस थिंग वी हैव डन. So this is what psi square has significance. It has significance, but psi has no significance. This we have done. Okay. Now next is what is orbital and what is orbit. Main पहले orbital करते हैं ताकि orbital आपको समझ में आए. What is orbital? ऑर्बिटल क्या होता है? जैसे एग्जांपल से समझे. दिस इज न्यूक्लियस, राइट? और यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ में बहुत प्रोबेबिलिटी है. आई एम यूजिंग द टर्म प्रोबेबिलिटी. चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे the probability of finding electron will decrease. This is orbital. जैसे जैसे हम दूर जाएंगे the probability of finding, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा डेंस बनाया है न्यूक्लियस के पास, ज्यादा डॉट्स दिखाए हैं. तो इसका मतलब यहाँ probability ज्यादा है. I am saying probability again and again repeating, don't get confused. यहाँ इलेक्ट्रॉन इतने सारे कैसे आ गए? The probability of finding electron near to the nucleus is more. Or as you move away from the nucleus, the probability of finding electron decreases. ये orbital होता है. What is orbital? यहाँ पर probability of finding electron is maximum. मैक्सिमम मतलब अराउंड 80 to 90% चांसेस हैं कि यहीं पर इस रीजन में, दिस इज एक्चुअली द रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो इसको जोड़कर अगर आप लिख देते हो दैट डिफाइंस ऑर्बिटल. व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum. Is it clear? So this is
आप इसको इकट्ठा करके अपने आप लिखना, दिस इज ऑर्बिटल. नाउ डिफरेंस बिटवीन orbit and orbital, very important. Orbital and orbit. Orbit आपने पढ़ा, बोहर मॉडल का कंसेप्ट था. Orbit is concept of Bohr model. Stationary states जिनको बोलते हैं हम. So on one side we'll write orbital and on another side we'll write orbit. One by one we'll do the difference. Number one, orbit is what? It is a three-dimensional space around the nucleus. Around the nucleus, where probability of finding electron is maximum. Means around 80 to 90% इस region में. Three-dimensional space लिखें, region लिखें, that's up to you. And orbit is what? Orbit, it is circular path. It is circular path in which electron revolve around nucleus. ऑर्बिटल का डायग्राम ऊपर ड्रॉ किया हुआ है. ऑर्बिट इज लाइक दिस. कितनी बारी हम ड्रॉ किए हैं कि ये न्यूक्लियस और ये सर्कुलर पाथ, दिस इज सर्कुलर पाथ, दिस इज सर्कुलर पाथ. ओके, so these are circular in shape, these are orbits. और अभी अभी हमने ड्रॉ किया, that is what? Orbital. यहाँ प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लें. और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. एक और चीज, so this is orbital and orbit. Now point number second, ध्यान से देखें. ऑर्बिटल में मैंने कोई ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ की है लाइक दिस कि इसमें यू अगर मैंने ड्रॉ कर दिया ये लाइन, ये गलत है. सो डोंट ड्रॉ दिस लाइन. इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं बिकॉज एक वेल डिफाइंड रीजन नहीं है. मतलब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी इतनी है, चांसेस इतने हैं कि 80 to 90% इतना है, इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं इस एरिया में, इस रीजन में. लेकिन कभी भी कहीं कितना दूर चले जाओ, प्रोबेबिलिटी नेवर बिकम जीरो. तो there are the chances that electrons are there. So कभी भी इसको ऑर्बिटल को हम वेल डिफाइंड रीजन से नहीं दिखाते. Now point number second is जो ऑर्बिट्स है वो देखो क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलर शेप. और ऑर्बिटल जो हैं आपको इस डायग्राम में तो लग रहा है ये भी सर्कुलर है, बट ऑर्बिटल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप. अभी हम करेंगे जब टॉपिक आएगा तब देन यू कम टू नो कि डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप. सो व्हाट यू कैन राइट इज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप. ऑर्बिटल्स हैव different shape, or whereas orbits are circular in shape. They are circular in shape. So this is point number 2.
जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली कंसेप्ट, दोनों को लेकर, दोनों को जोड़ा, तब जाकर ऑर्बिटल, क्वांटम थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आया, और अल्टीमेटली दिस कंसेप्ट अराइजेस. सो तो क्या कह सकते हैं आप, मतलब दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ Heisenberg uncertainty principle. You will not write HUP. Okay, full form लिखनी है आपने. And de Broglie concept. Whereas अगर हम third point की बात करें, orbit is not according to, बोहर मॉडल ने फेल ही इसलिए हुआ था, not according to these principles. In principle के अकॉर्डिंग नहीं था ये कंसेप्ट. पॉइंट नंबर 4, ऑर्बिटल्स की एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल आपको पढ़ने को मिलेगा दैट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट व्हाट आई हैव सेड, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल. स्मॉल एस लिखेंगे, कैपिटल अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे. एस ऑर्बिटल हैव या are not circular in shape. Orbitals are not circular in shape or spherical in shape. Whereas orbit is always circular in shape. Or you can say spherical in shape. जो ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, लाइक बॉल. पूरी बॉल देखो, इमेजिन करो. और ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक डिस्क. Excuse me, ma'am. जी बेटा. Ma'am, how can orbit be spherical? स्फेरिकल कैसे? बॉल में तो एक एग्जांपल दिया, लाइक 3 डायमेंशनल का एग्जांपल दिया. एक्स ऊपर. Ma'am, but orbit is a two-dimensional thing. Which one? Yes, orbit is a Orbit. 2-dimensional model, और whereas orbital is 3-dimensional model. जब भी आप इमेजिन करें तो x, y, z एक्सिस जरूर होता है उसमें. आप देखना आगे हम करेंगे. s orbital is like a ball, right? और p orbital आप देखेंगे तो वो कई बार x एक्सिस पर अलाइन होगा, y पर होगा, z पर होगा. तो मतलब डिफरेंट एक्सिस इन 3 डायमेंशन. So we can say it is what? It is 3-dimensional space around the nucleus. So it represents only 3-dimensional model, or whereas it represents what? 2-dimensional. Ashish, do you have any problem right now, beta? No, ma'am. Okay. Now, next. अगर हम बात करें ऑर्बिट्स की, इसका मतलब 2, 3 और 2D लिखा है, इसका मतलब they have directional characteristics. Orbitals have directional characteristics, मतलब they are aligned according on x-axis, y-axis or z-axis. Whereas orbits do not have directional characteristics. आपने छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो in an orbit, we can find out by means of what? We can find out by means of this formula, that is 2n square. Point number 7. Maximum number of electron
अगर ऑर्बिट में निकालने हैं तो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर. व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ शेल. अगर फर्स्ट शेल है n को 1 रखो और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2. अगर शेल सेकंड है 2 वैल्यू रखो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 into 2 is 8. So maximum number of electron in second shell will be 8. This is how we can calculate what? Maximum number of electron in an orbit. अगर हमें निकालना हो maximum number of electron in an orbital, then it is always 2. Means maximum number of electron in an orbital is always 2. मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2. 2. So this is difference between what? Difference between orbital and orbit. I hope that all points are clear to you. Ma'am, Yes. 6 point. Aditya. Who is asking some question? Himani. Yes, ma'am. बेटा स्पीक लाउडली. मैंने बोला मेरे को पूरा बोलना पड़ता है, मेरा रूम ना पूरा गूंजता है तब आपके पास वॉइस आती है. सो यू मेक अ हैबिट व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, स्पीक इन अ लाउड वॉइस. Ma'am, please repeat 6 point. क्या? Please Ma'am. repeat 6 point. आई एम नॉट गेटिंग यू. बेटा स्पीक लाउड. Ma'am, repeat the 6th point. Ma'am, she's saying. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. अब आ रही है बेटा? यस मैम. ओके. सुबह वाईफाई के सिग्नल एक्चुअली थोड़े से कम होते हैं, पर चलो. यू आर आस्किंग व्हाट 6 पॉइंट. हिमानी, योर प्रॉब्लम इज आल्सो 6 बेटा. Yes, ma'am. ओके. आगे वैसे मैं दिखा देती हूँ ड्रॉ करके. मैंने पहले ही बोला था जो एस ऑर्बिटल होते हैं ना, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि एस ऑर्बिटल वो ऐसे होते हैं बेटा, ऐसे. जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रही हूँ. और जो पी ऑर्बिटल होते हैं ना, वो एक्स और वाई एक्सिस के अलाइन होते हैं लाइक दिस. एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको हम पी एक्स लेबल कर देते हैं. ऐसे ही अगर ये वाई एक्सिस पर अलाइन है तो इसको पी वाई कह देते हैं. ओके. और अगर ये जेड एक्सिस पर अलाइन है, z एक्सिस पर अलाइन है p ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी इज मोर इन दिस रीजन देन इट इज pz. मतलब जो s ऑर्बिटल है वो कैसा दिख रहा है आपको? स्फेरिकल. और जो p ऑर्बिटल है वो कैसे नजर आ रहे हैं? डम्बल. और s ऑर्बिटल में x y z का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन px py और pz मतलब दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ यू गॉट दिस? बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Just hold on. It will take time. Now next topic. Next topic is very important. That is quantum number. बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है. और even it is necessary for what? Developing new concept. Quantum theory है तो quantum numbers उसका, right? Now is quantum numbers. Quantum numbers क्या हैं? Actually 4 चीजें हैं, ध्यान रखना. 4 चीजें कौन सी? एक n आपको पढ़ने को मिलेगा, एक l और एक m
और एक स्मॉल एस, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं. These are 4 quantum numbers that explain each and everything about electron. Explain about electron. Yeah, that give complete information. ऐसे लिख लो चाहे. That give complete information about electron. Now, this is definition. आप इसको term में समझें. What is quantum number? A set of 4 number that give complete information about what? About electron. Complete information का क्या मतलब है? It tells you about what? It tells you about the shape, size, right? Orientation.